अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون سے گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے اور کون سے گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس تعلق سے ایک مولوی جو کہ نیپال کا رہنے والا ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے، اور میں اس کی ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا جس میں کسی نے سوال کیا تو اس کے سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ گدھے کا گوشت حلال ہے، اس کا دودھ پینا بھی حلال ہے، اور پاکستان کے اندر لاہور میں گدھے کے گوشت کو کاٹ کر کے بیچا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ حلال ہے۔ یعنی کس طریقے سے عوام جو ہے ایسے مولویوں کے فتنے میں پڑ رہی ہے جو مولوی بلا دلیل فتویٰ دیتے ہیں۔ سنیے۔ آپ نے کہا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، دودھ بھی حلال ہے۔ تو ہم پھر اپنے بھائی ہیں ہمارے لاہور والے، ان بیچاروں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں کہ وہ ہم کو کہتے ہیں آپ یہ گائے کھاتے ہو، یہ بھینسیں کھاتے ہو۔ لاہور والے ہمارے بھائی میرے ساتھ گدھے کھاتے سیدھے سیدھے، تو ہم کو کہتے ہیں کہ آپ گدھے کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر ہم لوز ہو گئے نا، وہ بہن ہو گئے، لاہور والے بہن ہو گئے، لاہور والے کے سوال وہ ہم کو بدنام نہیں، وہ ہم کو بدنام کرتے ہیں کہ آپ ویسے کھاتے ہیں شادیوں میں، ہم کو کھاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کی شادیاں ہوتی ہیں آپ ہم کو گدھے کھلاتے ہو۔ تو اس کے بارے میں مطلب آپ نے ابھی یہ کہا کہ گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو لاہور کی جو سماجی سوالات ہیں ان کے جواب کے لیے لاہور کا کوئی ہونا چاہیے، وہاں کے سماج کے حالت سمجھے۔ ہو سکتے ہیں وہی ہے، نہیں مثال ہو سکتا ہے شاید تو بیٹھے بھی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے؟ ایک حلال ہے، اور ہر اس جانور کا گوشت حلال ہے جس کا دودھ حلال ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ دودھ خون اور گوشت سے بنائی جاتی ہے، اللہ پاک اس طریقے سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، وہ گدھے اور خچر اور جانور جو استعمال ہوتا ہے جہاد میں، اس کا بہت ضرورت ہے، اس کو کھانا اتفاق سے ناجائز فرمایا، اس لیے کہ جہاد میں استعمال ہوتا ہے، اور جہاں بھی ابھی دنیا میں جہاد چل رہا ہوگا وہاں اگر گاڑی نہیں استعمال ہوتی، یہ سب جانور استعمال ہوتا ہے، اس کو کھانا ناجائز نہیں، حرام کی درجہ میں، اس لیے کہ جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حقیقت میں جائز ہے۔ وہ گھوڑے ہاں جی ہاں، گھوڑے ہے، صحیح ہے، گدے یا گدے نہیں گدھے کھایا جا سکتا ہے، آپ گدا کھایا ہاں جی صاحب، اس سلسلے میں ہے، وہ تسی ہور گل کر رہے اس ہو، سلسلے میں ہے، گھوڑے کی مسئلہ وضاحت کے ساتھ ہے، اس سلسلے میں گدھے اور سب چیزیں جو استعمال ہوتا ہے، وہ تے اس صورت چ تسی گھوڑا کھا سکتے، ادروائز نہیں نہیں وہ نہیں ہوئے حاجی صاحب۔ السلام علیکم میرے سارے پراو لاہوریو، آج مسئلہ ادھر میں آیا گونزرا حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مزار نماز پڑھی ہے، اتنے مولانا صاحب ملے نیپال دے، انہوں نے یہ مسئلہ پیش کیتا ہے، رات ساڈے کو گل چھڑی ہے دودھ نہیں بارے، سارے دوست نے کھوتی نے دودھ حلال ہے، میں نہیں مننے، ایسے مولانا صاحب ملے نا، انہوں کا گوشت بھی حلال کر بارہ مبارک ہوئے لاہور والے، سمجھو گوشت حلال ہو گیا نہیں، ایویں بچا تسی پریشان ہوئے ہو، سمجھو خدا حافظ، تسی ایسا بدنام کرنے ہو کہ مجھے نہ کوئی۔ السلام علیکم، چلو زندہ آپ کون ہو؟ بات تو سنیں، چھوڑیں، آپ کون ہو؟ چھوڑیں بھائی، آپ کون ہو؟ آپ بھائی بات تو سنیں نا، چھوڑ دیں جی، چھوڑ دیں پلیز، آ جائیں۔
गधे की सुबह कर रहे थे जी। खैरियत है? बेचते हैं, हमारा रोजी रोटी है, हैं? रोजी रोटी है। जो लेते हैं उनको पता है ये गधे का काम करते हैं, गधे तो का कुत्ते वैसे काट के बेचना शुरू कर देंगे तो देखो क्या करेगा, चोरी चमारी तो नहीं करे, गलत तो नहीं करे साहब। आप पढ़े लिखे आदमी, आप कैसे आ गए इधर, गेट से आ जाते। आप लोग को क्या मकसद है कूद के आने का? भाई कूद के इसलिए आने का, ये गलत काम कर रहे हैं। ये गलत नहीं है, गलत नहीं, गधे का गोश्त बेच के दे रहे हैं यार। गधे की रोजी कमा रहे, खा रहे लोग, वो जायज नहीं है। नहीं, मिलादे हो रही है, गधे पे कमा रहे हैं, और भाई गधे का बच्चों की गोश्त शादी बेचना, करने। गधे की कमाई हराम हलाल है और और गधा गधे की हराम कमाई है। तो हलाल है भाई, गधे का गोश्त तो हराम है ना। वो कौन से इस्लाम में? आप भाई हमें काम करने तो नहीं, ये कौन से इस्लाम में गधे का गोश्त हराम नहीं है? नहीं है। क्या है? शिया सुन्नी कहीं भी किसी फिरके से बनने से, मौलाना से हमने पता किया है। जेबरा जब हलाल है तो ये क्यों नहीं हलाल सकता? सिर्फ कलर का फर्क है। तो आप ये लोगों को गाय का गोश्त उसको करके बेचते हैं? नहीं, जिनको पता है वो गधे का ही लेते भी, ये गधों का काम करते हैं, गधे का गोश्त ये बेचते हैं तो वो हमारे से वही, हम किसी को झूठ नहीं आपको बोल के पता है लेते। आप क्या बात कर रहे हैं? गधे का गोश्त लोग खुद खरीद के जी लेके जाते जी हैं आपसे? खरीदते कौन लोग लेते होते हैं वो? सब लोग गरीब गुरबा लोग। दाल है, गरीब आदमी, दाल बड़ी महंगी है, नहीं खा सकता है। कितना गोश्त निकलता है इसमें से? ये तकरीबन इसमें निकलता है ना 1.5 मन। नहीं तो आप ईमानदारी से बताएं, सही आपने मौलवी से वाकई पूछ के इसको करना शुरू देखो किया भाई? आप मौलवियों से उलमों से आप ये भी पूछे साहब, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि इसकी कमाई हलाल है और गधा हराम है। ये कहाँ से? भाई आप कमाल, अजीब लुगत मुझे आप जी दे रहे हैं। कुत्ते को पाल के उससे कोई फायदा लेना कमाई, और कुत्ते का गोश्त बेचना, यार दो जमीन आसमान की चीजें, फर्क है ना? देखो यहाँ पे सारा काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप बोलो आप हमें क्यों परेशान करते हो? आप तो माशाल्लाह पढ़े नहीं, तो लिखे ये हो, कहाँ से गरीब लेके कहाँ आदमी। से आते हैं आप उस वक्त तो नहीं आए जब मेरी बीवी फांसी लेके मर रही थी, लटक रही थी, बीवी बच्चे फाके से ये- पंखे में ले, अब उस इसका दिन ये क्यों नहीं मतलब मीडिया तो नहीं वाले है। ने आगे? इसका ये नहीं मतलब करें तो आप, नहीं है हम कि चोरी चमारी है गलत थोड़ी करें। और भाई गधे का गोश्त बेच रहे हैं आप? गधे का गोश्त थोड़ी बोलते हैं, किसी आदमी को तो नहीं बेच रहे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमें किसी चौक में चलते हैं, वहाँ खड़ा होकर मैं कहता हूँ कि ये आदमी गधे का गोश्त बेचता है, उसके बाद आप देखिएगा आपके साथ लोग क्या करते हैं। देखो कोई कुछ भी नहीं बोलता, सबको पता है कि गुर्बत है, सब तरीके का चल भी कर रहे हैं, नजरअंदाज हो गया अभी, चलो कोई नहीं। और लेने वाले ले रहे हैं, गधे लोग का क्या गोश्त समझ के ले रहे हैं आप? हाँ जी उनको पता भी है गधे का गोश्त बेचते कितने हैं, का इसीलिए लेके कितने का आते हैं आप? ये तो हम लाया उससे 2500 रुपए का, पोल्ट्री से लिया, इरोनी से। वैसे तो हम वो गधा लेते हैं जो काम से फारिग हो जाता है, गधा गाड़ी वाला छोड़ देता है, नकारा हो जाता है, वो लेते हैं हम, उसको ला कर। यानी एक तो गधा उसके ऊपर बीमार हो या हाँ मरने जी, वो बीमार गधे का गोश्त करके साफ जहर है, क्या करेगा लोग? गरीब आदमी खाएगा, दाल बड़ी महंगी है, थोड़ा सस्ता होगा हम बेचेगा, हमारा भी पेट में। नहीं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नशे में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही है, बिल्कुल गर्मी सही है। होया हुआ हम बड़ा सफर करके आए, गधा लांडी से लेके आया, बड़ा दूर से आया, खर्चा होता है, महंगा होता है, पैदल आया, किराया नहीं था। तो हफ्ते में कितनी बार अभी करते हैं गरीब इसको? तकरीबन 3 दफा हम कर देते हैं कोई ना कोई साहब। ये आज आप लोग जो आ गए, आप लोग ये बताएं कि जब हमारी गुर्बत पे होता है उस टाइम नहीं आते मीडिया वाले आकर के, अभी घुस गए इसमें, ये क्या गलत कर दिया हमने, क्या कर दिया? एक कानूनी तौर पर इस मुल्क में आप गलत काम कर रहे हैं ना? देखो ये आपके लिए कानून गलत नजर आ रहा है ना, ये इस्लामी तौर में कोई गलत नहीं है। गरीब परेशानी में, गुर्बत में सब जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा जब इस तरह के मौलवी बगैर दलील के फतवा देंगे तो जाहिल आवाम जो है ऐसे मौलवियों के फतवे में पड़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि और रसूल जिस काम को करने का हुक्म दें उस काम को करो, और जिस काम को करने से रोक दें उस काम को करने से रुक जाओ। सूरह हस्र आयत नंबर 7 में। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या हुक्म दिया है वो भी हम आपके सामने बयान करेंगे। और कोई भी मौलवी हो, उसकी बात बगैर दलील हो, उसको चेक करें, उससे दलील का भी मुतालबा करें कि हजरत जो आप कह रहे हैं कि गधे का गोश्त हलाल है, इसकी दलील क्या है, जरा दलील भी तो बता दें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आज के दौर में मौलवियों के फितनों से बचें। जो मौलवी बिला दलील बातें करता है उसके फितनों से बचें। ऐसे मौलवी फितनेबाज हैं जो बगैर हवाले बगैर दलील के इस तरह से फतवा देते हैं, और आवाम है कि ऐसे मौलवियों के फतवे को लेकर के उस पर अमल करती है। देखिए वो शख्स किस तरह से कह रहा है कि हमने कई मौलवियों से पूछा है और ये कैसा इस्लाम है
कि गधे पर सवारी करना, तिजारत करना हलाल है और गधे का गोश्त खाना हराम है? बताइए। तो ये आवाम के ज़हन में ऐसे मौलवियों की बात चली जाती है जो इस तरह से फतवा देते हैं। अब आइए हम आपके सामने देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम ईमान वालों को, तमाम मुसलमानों को यह हुक्म दे रहा है कि ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हर मौलवी की बात, हर उस शख्स की बात जो बिला दलील कहता है, उसकी बात को चेक किया जाए। हवाला देता है फिर भी उसकी बात को चेक किया जाए कि वो हवाला सही भी है कि नहीं है। तो आइए हम आपके सामने तकरीबन 10 हदीसें रखते हैं जिसमें कौन से गधे का गोश्त खाना हलाल है और कौन से गधे का गोश्त खाना हराम है। सबसे पहले हम हराम होने की दलील आपके सामने रखते हैं। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम खैबर अन लुहूमिल हुमूरी, जंग खैबर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने को मना फरमा दी थी। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5520 पर। इसी तरह से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया बस्ती के गधों के गोश्त से, यानी बस्ती के अंदर जो रहते हैं गधे, उन गधों के गोश्त के खाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1407 पर, इसी तरह से 5005 पर। दूसरी हदीस, तीसरी हदीस अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हराम किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त उन गधों के जो बस्ती में रहते हैं। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1936 और 5007 पर। चौथी हदीस अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया बस्ती के गधों के गोश्त के खाने से खैबर के दिन, हालांकि लोगों को उसकी जरूरत थी, चाहत थी, हाजत थी, जैसा कि सही मुस्लिम में हदीस नंबर 561 है, 5008 है और 5009 वगैरह पर देख सकते हैं। इसी तरह से पांचवी हदीस अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, हम खैबर के दिन भूखे हुए और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमने यहूद के गधे जो शहर से निकल रहे थे पकड़ लिए थे, फिर हमने उनको काटा और हमारी हंडियों में, हमारे बर्तनों में उनका गोश्त उबल रहा था। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने पुकारा, ऐलान किया, हंडियां उलट दो और गधों का गोश्त मत खाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतई हराम करार दिया है। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1937 और 5010 पर और 5011 पर। इसी तरह से बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया हमको कि बस्ती के गधों का गोश्त फेंक देने का, कच्चा हो या पका हो, फिर नहीं हुक्म दिया उसके खाने का। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1938 5015 पर। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं जानता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया गधों के गोश्त से इस वजह से कि वह लादने के, यानी सामान लादने के काम में आता है। तो बुरा जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हराम किया खैबर के दिन बस्ती के गधों का गोश्त। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1939 5017 पर, 1802 पर।
5018 वगैरह पर। इस हदीस से भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर, खैबर के दिन बस्ती के गधों से, यानी जो बस्ती में रहने वाले गधे, जो गांव में रहने वाले गधे थे, उन गधों को खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया और उनको हराम करार दिया। इसी तरह से हराम होने की और भी वजह है, और एक अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत मौजूद है। वो कहते हैं अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फतह किया तो गांव से जो गधे निकल रहे थे हमने उनको पकड़ा, फिर उनका गोश्त पकाया। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, खबरदार हो जाओ, अल्लाह और उसका रसूल दोनों तुमको मना करते हैं गधों के गोश्त से, क्योंकि वह पलीद है, नापाक है, शैतान का काम है उसका खाना। फिर सब हंडियां उलट दी गई और गोश्त उनमें उबल रहा था। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1940 और 5020 पर और 5021 पर। इस हदीस से भी पता चला कि गधा जो है नापाक है उसका गोश्त, और उसको खाने का जो काम है वो शैतान का है, इंसान का खाने का काम नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अब हम आपके सामने एक और रवायत रखते हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जंगे खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधों का गोश्त खाने से मना फरमाया। यह हदीस अल-मुजमल कबीर तबरानी हदीस नंबर 12820 पर और सुनन दारकुतनी में हदीस नंबर 4737 पर, और इसकी सनद हसन है। अब हम आपके सामने एक रवायत रखते हैं जिसमें यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों को खाने से मना किया है, यानी जो पाले हुए गधे हैं, जो बस्ती में गांव में रहने वाले गधे हैं, उनके गोश्त को खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, उसके गोश्त को खाने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। लेकिन जो जंगली हैं, जंगली जो खच्चर हैं, जंगली जो गधे हैं, वैसी उनको बिल इत्तेफाक खाना हलाल करार दिया है। इस ताल्लुक से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि हम खैबर के जमाने में वहसी यानी जंगली गधे खाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घरेलू गधों को खाने से मना फरमाया था। देखिए मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक हदीस नंबर 8737 पर, और इसकी सनद सही है। तो इस हदीस से पता चला कि जो जंगली गधे हैं, खच्चर हैं, उनका खाना हलाल है, उनका गोश्त खाना हलाल है। लेकिन जो गांव में, बस्ती में, करिए में रहते हैं, जो पाले हुए गधे होते हैं, उनका गोश्त खाना बिल इत्तेफाक, इस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि उसका गोश्त खाना हराम है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदे सही मुस्लिम में बाब बांधा हुआ है इस ताल्लुक से, बस्ती के गधों का गोश्त हराम के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर एक की बात की जांच पड़ताल करने की, छानबीन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।